Concentre-toi, leçon A. La lettre de Valérie. You remember Valérie? The one who had a conversation with Isabelle in lesson 0? Or I must say, the one who helped us revise our concepts of lesson 0? Let's see what letter she has written today. Paris, le 24 novembre 2015. Paris, 24th November 2015. Chère Isabelle. So, as I mentioned, लेसन 0 में इसबेल और वैलेरी की ही बातें हो रही थी ना, तो अब आई थिंक वैलेरी अपनी वेकेशन से वापस आ गई है और अपनी फ्रेंड इसबेल के साथ अपना एक्सपीरियंस फ्रांस का शेयर कर रही है. Tout va bien ici. Je m'amuse beaucoup. Paris est magnifique. Je vois beaucoup de beaux monuments comme la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, le musée d'Orsay. Valerie is telling Isabelle that everything is going good on her vacations and she's having a lot of fun. Paris is magnificent and she's been seeing many beautiful monuments around the city, like the Eiffel Tower, the Sacré-Cœur, and the Museum of Orsay. Sais-tu que Paris est divisé en deux parties par la fleuve Seine? Il y a d'autres fleuves en France, comme la Loire, la Garonne, le Rhône et le Rhin. Now, Valerie is asking Isabelle if she knew that Paris is divided in two parts by the river Seine. And there are other rivers in France as well. To name a few, Loire, Garonne, Rhône and Rhin. Then there's what? Les chaînes de montagnes. The mountain ranges in France are les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Vosges et le Massif central. Le Mont Blanc est le plus haut sommet de la France. So one interesting thing that Valerie is telling Isabelle is about the highest peak in France, which is Mont Blanc. Okay? La Marseillaise, l'hymne national, est un chant révolutionnaire écrit par Monsieur Rouget de Lille en 1792. Okay? So Marseillaise, which is the national anthem or a revolutionary song as we call it, was written by Mr. Rouget de Lille in 1792. Wow, Valerie has got a good hold of the facts about France. Then she tells her, en fait, beaucoup de fêtes ici, comme Noël, Pâques, Mardi Gras. So she tells her about the different festivals in France. La fête nationale de la France est le 14 juillet. The national day is on the 14th of July. Et cette date commémore la prise de la Bastille par les Français en 1789. So she tells her that this date commemorates the storming of the Bastille by the French in 1789. Wow, interesting. La France est connue pour sa grande variété de fromages, comme le camembert, le brie, le gruyère et le roquefort. France is known for its wide variety of cheese, such as camembert, brie, gruyère, and roquefort. It's interesting to see how Valerie has got a hold of the French facts so well. Now she's ending her letter by saying, Je vais terminer ma lettre maintenant. Donne mes salutations à tes parents. I'm going to finish my letter now. Please give my greetings to your parents. Tu me manques? J'attends ta réponse. So I miss you a lot and I'm waiting for your answer. Au revoir. Goodbye. Lycée. Hugs and kisses from Valerie. So isn't it so nice that when she was about to leave for the vacations, her friend Isabelle guided her through important things about the country she's going to visit, and now when she has got an idea about the country herself, वो खुद अपने दोस्त को एक लेटर लिख के वो सब चीजें बताना चाह रही है जो उसने सीखी. Okay, now let's move on. On va voir les points culturels.
So I know in the letter we've already revised them well, but let's have a look at them separately, the cultural points that were important in this lesson. Paris est divisé en deux parties par le fleuve Seine. So this is the river Seine, which divides the capital city in almost two equal parts. Le Mont Blanc. This, Le Mont Blanc, is the highest peak in France. La Marseillaise, the national anthem, was written by Mr. Rouget de Lille. 14th July, le 14 juillet, commémore la prise de la Bastille par les Français en 1789. So before you wonder why am I telling all these facts again, because I know from the letter most of you will not be able to learn them, but when I put them separately, you can make a note of them, that these are the points that you must learn from this lesson from exam point of view. Okay? Les monuments. So we had all these monuments. We have these names in lesson 0 as well. Puis on a les fleuves, the rivers. You see la Loire, la Garonne, le Rhône et le Rhine. Les chaînes montagnes. So in the map right here, all the mountain chains are clearly marked for you. Les fêtes, different festivals from Noël, Pâques, Mardi Gras et la fête nationale. Et les fromages. So all this we have been doing in Ashanti 1 and 2 as well. So in lesson 0 and 1, we had a good recap of all those concepts, as well as got to learn something more as well about France. Maintenant, on va voir la grammaire. It's time to move to the grammar. Récapitulons. So in the first lesson of Enchanté 3, we are going to have a recap of verbs, regular and irregular, articles, definite, indefinite, contracted and partitive, adjectives, les adjectifs possessifs, possessive adjectives, and la négation, negation. So these are the most important topics from Enchanté 1 and 2. We're going to have a recap. Before I begin, let me make this clear. We're not going to cover all the grammar topics in today's video. Okay? So don't worry, the lesson will not be too long. We're only going to cover 2 out of these 5 grammar topics. So without any further ado, let's begin. Les verbes. So there are 3 categories of verbs in French. ER ending, IR ending, and RE ending. And in these 3 categories, we have either regular verbs or irregular verbs. Right? So let's begin our discussion with regular verbs. Les verbes réguliers. How do we conjugate the regular verbs in French? So on screen here, I've made a flow chart for you to remember the rules. In case of ER ending verbs, you used to cut ER and add the following endings as per the subject pronouns. In case of IR ending verbs, you used to cut R and add the following endings. And in case of RE ending verbs, you used to cut RE from the verb and add the following verb endings. So all those who already know them, great, move ahead with me. And those who don't, pause the video so that you can make a note of it. Because otherwise, you won't be able to attempt the exercises I'm going to share now. Here. Take 2 minutes, conjugate all these regular verbs as per the subjects given on the right side. Come back once you are done to tally your answers from here. अब एक चीज जो मैं याद दिलाना चाहूंगी, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट 2 केसेस में. तो बच्चों ये चीज याद रखिए, जब भी किसी एक पर्सन का नाम गिवन हो, सिर्फ एक, तो उस केस में जो वर्ब कॉन्जुगेशन है वो इल या एल वाली आती है. और जब एक से ज्यादा लोगों का नाम गिवन हो, लाइक les enfants, it's plural, तो in that case we use the conjugation that we use with ils else. Alright? काफी बार मैंने नोट किया है, जब तक सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउंस गिवन होते हैं बच्चे सही कर लेते हैं,
बट जहां मैं लोगों का नाम डाल देती हूँ क्वेश्चन में, वो कंफ्यूज हो जाता कि मैम यहाँ कौन सी कॉन्जुकेशन आएगी। तो इससे आपको याद रहेगा कि कौन सी कॉन्जुकेशन कहाँ आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इररेगुलर वर्ब्स पे। सो देयर वर अ लॉट ऑफ इररेगुलर वर्ब्स जो हमने ऑप्शनल 1 और 2 में की थी। लेट्स क्विकली रिवाइज देम। द फर्स्ट टू वर एथर एंड avoir, my most favorite verbs, because इसमें कोई पैटर्न नहीं है, they are completely irregular and you have to learn them by heart, right? Likewise, we had two more, ale and fair. So these four irregular verbs, or I must say completely irregular verbs, are very common to use in sentences, and that is why इन चारों को by heart learn करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी। ओके, इसके अलावा और भी हमने इरेगुलर वर्ब्स की थी, जैसे ये सब थी ER एंडिंग में इरेगुलर्स। फर्स्ट बॉक्स में हम क्या करते थे, एंडिंग्स इनमें वही आएंगी जो ER एंडिंग वर्ब्स में आती थी, बट ये दो ई के बीच में जो लेटर है, इसको कॉन्जुगेशन के टाइम हम डबल कर देते थे विद ऑल सब्जेक्ट प्रोनाउंस एक्सेप्ट नो एंड वो। इसी तरह इन चार को देखिए, इसमें कॉन्जुगेशन के बाद जो पहला ई आता था उसमें ग्रेव एक्सेंट लगा देते थे विथ ऑल सब्जेक्ट प्रोनाउंस एक्सेप्ट नो एंड वो। यानी इन दो बॉक्सेस का क्या करना है, जितनी भी CER वर्ब्स होती थी उसमें नो फॉर्म में CONS जो लगता था, वहां सी पे एक सिदीला आता था। बस ये रेगुलरिटी थी CER वर्ब्स की। और इसी तरह अगर मैं बात करूं GER वर्ब्स की, GER वर्ब्स के केस में नो फॉर्म में ONS नहीं लगाते थे, हम क्या लगाते थे, EONS। सो ये कुछ इरेगुलरिटीज थी इन वर्ब्स की जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे। देन IR एंडिंग में हमने कौन सी इरेगुलर वर्ब्स की थी, पहले हम इन चार को देखते हैं। इन चार वर्ब्स में कॉन्जुगेशन के वक्त ई की जगह IE आ जाता था। फॉर एग्जाम्पल वनीर में हम लिखते थे VIENS, विया, थियो विया, इलेल विया, IE हो जाता था, बट नू और वू में सिर्फ ही। इसी तरह वुलुअर और पुआर, वुफ, VEUX, VEUX, VEUT। सो ये कुछ इरेगुलरिटीज थी जो आप आराम से औशांति द का अगर बैक पेजेस खोलोगे या इवन औशांति थ्रू के भी बैक पेजेस खोलोगे आपको मिलेंगे ये वर्ब्स, और ये सारी वर्ब्स की कॉन्जुगेशन आपको याद रखना जरूरी है। ओके, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फोर, एक्रीर, रेक्रीर, डेक्रीर, प्रेस्क्रीर। इन चारों वर्ब्स के केस में क्या होता था, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ नो वो इल्स एल्स के साथ स्पेलिंग में एक वी आ जाता था, एक्रीवॉ, एक्रीवे, एक्रीवेंट, पर सिंगुलर साइड पे ऐसा नहीं होता था। इसी तरह अगर मैं बात करूं इन तीन की, मैत्र, परमैत्र और बात्र, सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी ज, त्यो, इल के साथ सिंगल टी आता था, बट नो वो इल्स एल्स के साथ डबल टी। लाइकवाइज प्रोंद्र, कॉम्प्रोंद्र, अप्रोंद्र, इनकी कॉन्जुगेशन में डी ही गायब हो जाता था। वर्ब में डी दे रखा है बट प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वो डी रफू चक्कर। ज प्रोंद, थ्यू प्रोंद, इलेल प्रोंद तो होता था, पर नु प्रनो, वो प्रने, इल्जेल्स प्रेन ये होता था। एंड लास्ट अगर मैं बात करूं दीर, लीर और बुआर, कंप्लीटली इरेगुलर वर्ब्स जिसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम फिगर आउट नहीं कर पाते थे। सो इन सब इरेगुलर वर्ब्स के केस में कुछ ना कुछ ऐसा पेक्यूलियर चीज था, पेक्यूलियर रूल था जो आपको याद रखना पड़ता था। मेरा मकसद इन सबको इस तरह टेबल फॉर्म में रखने का ये था कि इससे पहले आप अपनी औशांति 3 की जर्नी शुरू करो, इन वर्ब्स को जरूर याद कर लो। ऑलराइट, चलिए एक एक्सरसाइज के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं।
अब क्योंकि वर्ब्स इतनी सारी थी तो एक्सरसाइज भी काफी बड़ी है। पॉज करो वीडियो, जितनी याद है वर्ब्स या जितनी याद कर सकते हो एटलीस्ट उतनी अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करो, क्योंकि इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सब कुछ नहीं भूले हैं। भाई राधिका मैम की वीडियोस देख के पढ़ते हैं, इतना तो हमें याद रहता है। और अगर अभी भरोसा नहीं है अपने ऊपर तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब वर्ब्स रिवाइज कर लो ये एक्सरसाइज जरूर अटेम्प्ट करना और आंसर्स यहाँ से टैली कर लेना। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा वर्ब्स का रिकैप तो हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने अगले ग्रामर टॉपिक पे, विच इज आर्टिकल। आर्टिकल्स हैं तो बड़े आसान, बट जब सब एक साथ आ जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। होता है ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं नई नई चीजें सीखते हैं, बेसिक्स याद रखना भूल जाते हैं। वही चीज इन बेचारे आर्टिकल्स के साथ भी होती है। चलिए रिवाइज करते हैं। इससे पहले मैं आर्टिकल्स याद दिलाऊं, मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि नाउन का जेंडर और नंबर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि सही आर्टिकल तो तभी लगा पाओगे ना जब नाउन का जेंडर और नंबर सही से पहचान पाओगे। तो देखिए, टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नाउन। तो प्लूरल नाउन्स की क्या पहचान है फ्रेंच में? दे एंड विद द लेटर्स एस, एक्स एंड जी। और जो नाउन इन लेटर्स से एंड ना हो रहा हो वो क्या होता है? सिंगुलर। इजी। अब वॉवल से शुरू होने वाले नाउन्स के लिए हम ए ई आई ओ यू तो देखते ही हैं, पर साथ ही साथ फ्रेंच के दो साइलेंट अल्फाबेट्स एच और वाई, इनका ट्रीटमेंट भी वैसे ही होता है जैसे वॉवल्स के साथ। ज्यादातर हमारे फेमिनिन नाउन्स किन से एंड होते हैं? ई से या आई ओ एन से। मैंने बोला है ज्यादातर, बिकॉज आप अच्छे से जानते हो देयर आर एक्सेप्शंस। ओके, और इनके अलावा अगर किसी नाउन पे कोई भी मेंशन रूल नहीं अप्लाई हो रहा तो वो होता है हमारा मैस्कुलिन सिंगुलर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ 4 वर्ड्स लिखती हूँ, ठीक है? गार्सों, फी, ओम, आमी। अब देखिए, ये वर्ड एस से एंड हो रहा है तो ये क्या हो गया मेरा? प्लूरल नाउन। ये वर्ड साइलेंट लेटर एच से शुरू हो रहा है, so it is beginning with a vowel and a singular noun. ये वर्ड ई से खत्म हो रहा है, so it is a feminine singular noun. और इस वर्ड पे कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा तो ये हो गया मैस्कुलिन सिंगुलर। ठीक है, अब हम ये सीख चुके हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं les articles définis et indéfinis, so definite and indefinite. सो इस टेबल की मदद से मैं आपको रिवाइज कराऊंगी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। पहले शुरू करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ। Quels sont les articles? कौन से होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स? le, la et l'apostrophe and les. कौन utilise? Where do we use them? So we use definite articles with specific nouns, जब मुझे पर्टिकुलर किसी चीज को पॉइंट आउट। And do they change in case of negation? No. Definite articles negative sentences में same to same रहते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं indefinite articles की ओर। Indefinite articles are a, il and they. ये यूज किए जाते हैं सारे कॉमन नाउन्स के साथ, और अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव हो तो ये चेंज हो जाते हैं इनटू डी एंड डी अपोस्ट्रोफी। ऑलराइट, बस हाँ एक चीज याद रखनी है, अगर एत्र वर्ब है सेंटेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा, पर अगर एत्र वर्ब के अलावा कोई सेंटेंस है तो बिंदास चेंज करो, नेगेशन। ऑलराइट, अरे हाँ एक चीज और,
डेफिनेट आर्टिकल्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है द, और इनडेफिनेट का होता है अ, एंड प्लूरल में सम। थोड़ा बहुत तो याद आ गया ना आर्टिकल्स का मतलब क्या है, कहाँ यूज होते हैं और कैसे। तो चलिए अब प्रैक्टिस कर ले। सो स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं दो एक्सरसाइजेस। पहले 5 सेंटेंसेस डेफिनेट आर्टिकल्स के यानी ल, ला, एल अपोस्ट्रोफ वाले, और दूसरे 5 सेंटेंसेस इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अ, इन और दे। पॉज करके वीडियो जल्दी से वापस आइए और अपने आंसर्स को यहां से टैली करें। याद रखिए वो सारे छोटे छोटे रूल्स जो अभी मैंने आपको डिस्कस कराए हैं, ताकि सेंटेंसेस में गड़बड़ ना हो। अब क्योंकि औशांति लेवल थ्रुआ है तो एक्सरसाइजेस इतनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकती। अक्सर देयर इज अ मिक्स्ड एक्सरसाइजेस फॉर बोथ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन वन क्वेश्चन। ट्राई करें। सो इस केस में आपको सेंटेंस पढ़ के समझना है कहाँ सिर्फ एक जनरल नाउन की बात हो रही है और कहाँ किसी स्पेसिफिक चीज की। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं दिस इज अ फोन, ये एक फोन है। दिस इज द फोन ऑफ राधिका मैम। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना कि ये फोन किसका है, ये फोन राधिका मैम का है। तो इसी तरह इन सेंटेंसेस को पढ़ के समझिए कहाँ सिर्फ एक जनरल नाउन को पॉइंट आउट किया जा रहा है और कहाँ स्पेसिफाई किया जा रहा है कि वो नाउन किसको बिलोंग करता है। पॉज करके वापस आइए जल्दी से एंड अपने आंसर्स को इन सॉल्यूशंस के साथ टैली कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का टॉपिक तो हुआ कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं टू कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स, les articles contractés। सो फॉर बिगिनर्स जिनको याद ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स होते क्या है, सो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड का मतलब है चीजों को जोड़ना। तो इस केस में हम एक प्रेपोजिशन को हमने जो अभी डेफिनेट आर्टिकल सीखे उनके साथ जोड़ देते हैं और एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उनकी यूज करते हैं सेंटेंसेस में, इसीलिए उनको बोलते हैं les articles contractés। और अब वो prepositions कौन से हैं? They are the preposition a and d। preposition a का मतलब होता है to या at, and d का मतलब होता है of या from। तो पहले a फैमिली को देखते हैं। So the preposition a plus l'article le, a plus le क्या बन जाता है? au। तो ये कहाँ यूज होगा? मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन्स के साथ। Then we have ala, feminine singular, al apostrophe, nouns beginning with a vowel, and preposition a plus definite article le, ये बन जाता है aux, जो यूज होता है सारे प्लूरल नाउन्स के साथ। एंड इसी नेचर को फॉलो करती है हमारी de फैमिली। द preposition de plus le article becomes due। Then we have the la, feminine singular, the apostrophe for vowels, and preposition de plus article les becomes they, where plural. Easy, right? So हमें ध्यान से बस देखना होता है हमारे नाउन का जेंडर और नंबर, और उस हिसाब से इन कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स को सेंटेंस में यूज करना होता है। इंटरेस्टिंग बात ये कि चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इन आर्टिकल्स की फॉर्म नहीं बदलती। एंड हाँ, एक चीज जो बहुत अच्छे से हमें याद रखनी है, विद प्रॉपर नाउन्स यानी लोगों के नाम या शहरों के नाम एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स, उन दोनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन यूज होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं। क्योंकि आप यही तो कहोगे ना आई टॉक टू माई फ्रेंड, ये थोड़ी कहोगे आई टॉक टू द माई फ्रेंड, साउंड ही अच्छा नहीं कर रहा ना।
तो इसीलिए हमें ये स्पेशल रूल याद रखना है, लोगों के नाम, शहरों के नाम और ब्लैंक के बाद अगर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव है तो इन तीनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन फॉर्म यूज होगी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं। ठीक है, अब रिकैप हो गया है, एक्सरसाइज ट्राई कर लेते हैं। पहले 5 सेंटेंसेस डी फैमिली के, अगले 5 आर फैमिली के। तो चलिए पॉज करिए वीडियो को एंड जैसे ही लौटे, आपको पता है ना क्या होगा, मेरे आंसर स्क्रीन पे आ चुके होंगे। तो चलिए टैली करिए अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ एंड देखिए, जहां तक मुझे उम्मीद है आपने सब सही ही किया होगा, पर अगर गलती से कुछ गलत हो भी गया है तो जरा मैच कर लो, क्या गलती हुई है ध्यान कर लो। अब ensemble 3 लेवल 3, सो मिक्स्ड एक्सरसाइज के लिए कुछ टिप्स देख लें। व्हाट इफ आ फैमिली और द फैमिली का एक कंबाइंड क्वेश्चन आ जाए, तब क्या करना है? सो नेवर यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डायरेक्टली। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप देखते ही समझ जाओगे सेंटेंस, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे आपसे, सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मत यूज कर देना सेंटेंस। एग्जाम्पल, je vais dash dash plage, I go dash dash beach। मैंने यहाँ 2 डैश रखे, एक प्रपोजिशन के लिए और एक अपने डेफिनेट आर्टिकल की। तो स्टेप 1, पहले आइडेंटिफाई करो वर्ब के हिसाब से कि कौन सा प्रपोजिशन यहाँ आएगा, टू एट वाला या ऑफ फ्रॉम वाला। तो मैंने देखा आई गो टू, मैं किसी जगह जाती हूँ ना तो आई गो टू, तो यानी मैंने ये डिसाइड कर लिया यहाँ प्रपोजिशन आई। नेक्स्ट, फिगर आउट जो नाउन है उसके हिसाब से डेफिनेट आर्टिकल कौन सा बनता है अगर रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे ब्लैंक के बाद ना कोई पर्सन का नाम है ना सिटी का नाम और ना ही कोई पोजेसिव एडजेक्टिव, तो यानी डेफिनेट आर्टिकल तो चाहिए। अब कौन सा चाहिए? प्लाश एंडिंग विथ ई, तो मुझे जो है मेरा आर्टिकल चाहिए फेमिनिन सिंगुलर, तो वो हो गया ला। तो इस तरह पहले मैंने प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई किया और फिर मेरा डेफिनेट आर्टिकल। तो ऐसे करने से मेरी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड जब धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अब मैं कर लूंगी, अब मैं सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप मत करना, क्या हो गया। ठीक है, तो ये तो बस टिप्स है उन लोगों के लिए जिनको कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर कि हम 1 गो में सही कर सकते। तो चलिए इन टिप्स को फॉलो करते हुए इस एक्सरसाइज को करिए अटेम्प्ट। ये है एक मिक्स्ड एक्सरसाइज ऑफ आ एंड द कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स। वंस यू आर डन, कम बैक एंड टैली करिए अपने रिस्पॉन्सेस को मेरे आंसर्स के साथ। अब आप देखेंगे कि कुछ जगह मैंने 2-2 आंसर्स लिखे, क्योंकि सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से दोनों प्रपोजिशन सही वहां बैठ रहे। तो अगर आपने उनमें से कोई एक लिखा है, ग्रेट। तो इसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स का भी टॉपिक हुआ समाप्त। सो अब फाइनली हम बढ़ते हैं पार्टिटिव आर्टिकल्स की ओर। कौन से होते हैं पार्टिटिव आर्टिकल्स? याद करो, अशांते द में सीखे थे। दिखने में बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स जैसे, पर मीनिंग है इनका सम। हम इन पार्टिटिव आर्टिकल्स को यूज करते हैं क्वांटिटी डिनोट करने के लिए ऑफ अ फूड और अ बेवरेज जो हम कंज्यूम करें। खाने पीने की चीजों के साथ जब हम एक अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी की बात करें कि मैंने थोड़े चावल खा लिए, मैंने थोड़ा सा जूस पी लिया, तो उन केसेस में हम यूज करते हैं लार्टिकल पार्टिटिव। नेगेटिव में ये चेंज हो जाता है इनटू डीई और डी एपोस्ट्रोफी और वर्ब्स ऑफ प्रेफरेंस। बड़ा तंग करते थे। 4 वर्ब्स ऐसे हैं, एमे आदोरे प्रेफरे दितेस्थे, जिनके साथ कभी भी पार्टिटिव आर्टिकल यूज नहीं होता। तो हमें उन सेंटेंसेस में ध्यान देना है जहां ये 4 वर्ब्स हो, क्योंकि उन केसेस में
फूड और बेवरेज के साथ लगते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे पार्टिटिव आर्टिकल्स के। तो चलिए इन रूल्स के बेसिस पे मेरी इस छोटी सी एक्सरसाइज को करिए प्रैक्टिस, ठीक है। एंड वंस यू आर डन, पता है ना क्या करना है, मैम के आंसर्स के साथ अपने आंसर्स को टैली करना है। अब आप बोलोगे मैम अभी अभी आपने वो रूल बताया, वो वर्ब्स ऑफ प्रेफरेंस के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगते हैं, एक्सरसाइज में तो दिया ही नहीं, तो कंफ्यूज करने के लिए बताया। जी नहीं बच्चों, अब कराऊंगी वो रूल। टिप्स फॉर अटेम्प्टिंग मिक्स्ड एक्सरसाइज, एकदम से थोड़ी डरा दूंगी डेफिनेट और पार्टिटिव आर्टिकल्स की मिक्स एक्सरसाइज देके। देखिए सो जब भी मिक्स्ड एक्सरसाइज आएगी, यानी डेफिनेट या पार्टिटिव में से कोई भी आर्टिकल लगाने को क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि उस सेंटेंस में क्या वर्ब ऑफ प्रेफरेंस है, एमे आदोरे प्रेफरेते तेस्ते। एंड अगर है तो भूल जाओ पार्टिटिव के रूल्स, सीधा सीधा वहां डेफिनेट आर्टिकल लगा दो। बट अगर आपको दिख रहा है कि वहां तो कोई वर्ब ऑफ प्रेफरेंस है ही नहीं, तो उस केस में क्या करो, बस इस चीज का ध्यान रखो कि सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव। क्योंकि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारे पार्टिटिव आर्टिकल कौन से यूज होंगे, डी अपोस्ट्रोफ या डी। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो इन चारों में से कोई भी पार्टिटिव आर्टिकल यूज होगा। तो अगर इन स्टेप्स के जरिए मिक्स्ड एक्सरसाइज करोगे, क्या गलती होगी? ना ना, मैं श्योरिटी दे रही हूं नहीं होगी, बेशर्ते तुम रूल्स ध्यान रखो। तो चलिए ट्राई करें एक मिक्स्ड एक्सरसाइज। आप पक्का मिक्स्ड है, डेफिनेट या पार्टिटिव आर्टिकल आपको यूज करना है इन सेंटेंसेस के अंदर। पहले चेक करो वर्ब ऑफ प्रेफरेंस है या नहीं, है तो डेफिनेट आर्टिकल, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। फिर देखो नेगेटिव है या नहीं, है तो डी अपोस्ट्रोफ, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओ। एंड फाइनली अगर ऊपर वाले दो में से कोई भी केस नहीं है, तो यूज होंगे हमारे पार्टिटिव आर्टिकल ड्यू, दिला, दिल अपोस्ट्रोफ और दे। क्विक रिकैप भी दे दिया मैंने साथ साथ, अब तो कर लो इस एक्सरसाइज को। चलो जल्दी से एक्सरसाइज करके वापस आओ और मेरे आंसर्स के साथ अपने आंसर्स को टैली करो, क्योंकि इसके साथ हमारा आर्टिकल्स का टॉपिक भी हुआ खत्म। आई एम टायर्ड, ऑल राइट, आई एम टायर्ड। आई नो इतना सारा मैंने बोला है तो आपने सुना भी है, सुनते सुनते आप थक गए और बोलते बोलते मैं सेतु, what is it all? No. Our continue in also lesson. We are going to continue our lesson as I told you in the beginning itself कि इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ग्रामर टॉपिक्स करेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स रह गए हैं वो अगले पार्ट के लिए। तो यहाँ तक के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ठीक से रिवाइज करिएगा, हो सके तो पुरानी किताबें उठा के उन्हें एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ आपसे मैं अगले लेसन में, तब तक के लिए au revoir।